मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था और आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ मीटर ब्रिज की जो स्पेलिंग थी, मीटर दैट स्टैंड्स फॉर यूनिट ऑफ द लेंथ 1 मीटर, ओके, एंड हियर METER, दिस मीटर इज यूज्ड फॉर ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, वहाँ METER यूज किया हुआ, इट मीन्स दैट इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पोटेंशियोमीटर इज आल्सो ए measuring instrument and it is used to measure potential difference across any two terminals in the circuit, or it is used to measure EMF of the cell or terminal potential difference of the cell. A potentiometer, it simply consists of a long wire. इस वायर की लेंथ 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है और 10 मीटर भी हो सकती है। In laboratory we uses the potentiometer of 4 meter wire or of 10 meter wire. यहां पर मैंने 4 मीटर वायर का एक पोटेंशियोमीटर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आप ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियोमीटर को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करें। ऑन पेन पेपर वी कैन रिप्रेजेंट ए पोटेंशियोमीटर सिंपली बाय ए स्ट्रेट वायर, सिंपली बाय ए स्ट्रेट वायर, एंड दिस स्ट्रेट वायर फिक्स्ड ऑन वुडन बोर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अब आप ध्यान दें, AB इज ए पोटेंशियोमीटर। इन ऑर्डर टू पास करंट थ्रू इट, इससे करंट पास करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी करेंगे अलॉन्ग विथ ए की, और उस करंट को कंट्रोल करने के लिए या वेरी करने के लिए हमें क्या कनेक्ट करना होगा, एक रियोस्टेट, और उस करंट को मेजर करने के लिए वी कैन कनेक्ट अ मीटर। ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है तो ये अमीटर की पॉजिटिव साइड होगी, ये बैटरी की नेगेटिव साइड है तो ये अमीटर की नेगेटिव साइड होगी। And this circuit of the potentiometer is called auxiliary circuit or main circuit. Now, if we connect a voltmeter, one terminal of the voltmeter to A, and next terminal of the voltmeter is connected to a jockey, and the work of jockey is to make the sliding contact with the wire. Now, if we touch the jockey at this place, then at this place, then at this place, means अगर हम जॉकी को डिफरेंट पोजीशंस पर टच करें तो वोल्टमीटर की रीडिंग चेंज होगी, and that voltmeter measures the potential difference across these two ends of the wire. Okay? अगर हम पोटेंशियोमीटर को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, मान लेते हैं that point is J, तो this voltmeter measures the potential difference across this portion of the wire, and potential difference across this portion of the wire is equal to VAG, and it is equal to the product of current and resistance of this portion, that is RAJ. Okay? Resistance of wire is given by rho L by A. This L is the length of AJ portion of the wire. This L is the length of this portion of the wire. This relation clearly indicates that for a constant current, resistivity constant है, wire का cross sectional area constant है, ये relation clearly indicate कर रहा है, क्या indicate कर रहा है कि potential difference across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion of the wire. This is the working principle of a potentiometer. So what is the working principle of the potentiometer? क्या statement हमें लिखना है कि potential difference across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion of the wire. अब आप ध्यान दें कि अगर हम इस proportional sign को simply मैं इसको लिख रहा हूं V and it is equal to proportional sign अगर हटाते हैं then we have to put a constant and This K, it is equal to V by L, and potential difference divided by distance is called potential gradient. तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, potential gradient. Is it clear? What is the unit of this potential gradient? Its unit is volt per meter. It can be expressed as potential difference applied across the wire VAB upon LAB, means length of wire. This VAB is equal to the product of current and resistance of the whole wire divided by LAB. Okay? हम इस K को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और for any portion we can write the potential gradient as VAJ upon LAJ, यानी कि हम किसी पोर्शन के लिए भी हम इस रेशियो को कंसिडर कर सकते हैं। और इस रिलेशन
इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो वी विल फाइंड दैट द K इट इज इक्वल टू I rho by A. This relation indicates that potential gradient of a potentiometer it depends upon current through the wire. Current through the wire. Resistivity of the wire it will remain constant. Cross sectional area of the wire it is also constant. But by changing the current in the circuit we can change the potential gradient. अब आप ध्यान दें कि करंट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं. रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का जो आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके जो यूजेस हैं जो हमारे सिलेबस में जो इसके यूजेस मेंशन किए हुए हैं वो क्या है कि हाउ वी कैन यूज ए पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल और टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. लेट अस टेक दिस टॉपिक 1. नाउ लेट अस डिस्कस how a potentiometer can be used to compare the EMF of two cells. And we know that potentiometer is simply a long wire. Potentiometer क्या है? It is simply a long wire. In order to pass constant current through the wire, हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी है along with a key. उस करंट को कंट्रोल करने के लिए we have to connect a rheostat और करंट को मेजर करने के लिए एक अमीटर कनेक्ट कर रहे हैं. अब आप ध्यान दें जिन सेल्स के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है वी हैव टू कनेक्ट देयर पॉजिटिव टर्मिनल विथ ए. उन सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करेंगे? टू ए टर्मिनल ऑफ द वायर. नेगेटिव टर्मिनल of the cells they are connected to two-way key. They are connected to two-way key. वन वे की आपने जरूर यूज की होगी. इवन इन 10th क्लास में भी ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करते समय वन वे की आपने देखा होगा. केस ऑफ टू वे की के केस में क्या होगा? यहां पर एक गैप और होगा, यहां पर एक गैप और होगा. एंड 3 टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अगर हम की यहां इंसर्ट करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट होगा. अगर हम की इस जगह पर इंसर्ट करते हैं तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ की इज कॉल्ड टू वे की. तो हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है? टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्मिनल ऑफ द टू वे की. मिडिल टर्मिनल ऑफ द टू वे की इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर एंड नेक्स्ट एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए जॉकी. एंड जिसका यूज किया है टू मेक ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद द वायर. इसकी वर्किंग पर आप ध्यान दें. वर्किंग प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको पता है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन. ओके. नाउ इसकी वर्किंग में आप ध्यान दें कि एज वी क्लोज द की के, अगर हम इस की को क्लोज करें देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इंसर्ट द की इन द फर्स्ट गैप. इंसर्ट द की इन द फर्स्ट गैप. अगर हमने फर्स्ट गैप में की को इंसर्ट किया है, नाउ दिस सेल इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सर्किट, जबकि सेकंड सेल ओपन है. लेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज E1 एंड ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज E2. नाउ इफ वी टच द जॉकी एट फर्स्ट एंड देन एट द सेकंड एंड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन. इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि इस वायर पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा? नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन का मतलब नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मींस जीरो डिफ्लेक्शन. Suppose for the first cell, the null deflection is found at J1 point पर, and length of this portion of the wire, मान लेते हैं length of this portion of the wire is L1. Now look at the figure. अब इस पॉइंट पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है? 0. It means the current through this branch is 0. मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट और सेल के पॉजिटिव, क्या इस ब्रांच में कोई करंट है? क्या इस ब्रांच में कोई करंट है? करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 0. इसका क्या मतलब है? व्हेन द करंट इन अ वायर इज 0 इफ इट्स टू एंड्स आर एट सेम पोटेंशियल. तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए. अब इस पूरी ब्रांच को भी अगर आप चेक करें फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द सेल टू द J1 पॉइंट,
इस पूरी ब्रांच में भी कहीं पर भी करंट नहीं है। इसका भी क्या मतलब है कि सेल का नेगेटिव टर्मिनल और J1 पॉइंट दे आर एट सेम पोटेंशियल। तो वी कैन राइट पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ cell is equal to potential of point J1। इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके इक्वल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके इक्वल है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J1। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ cell is equal to potential difference across A and J। मुझे बताओ क्या इस केस में सेल से कोई करंट पास हो रही है? No current is drawn from the cell, no current is passed through the cell. In such case, the potential difference across the two terminals of the cell is called EMF of the cell. It means this potential difference is actually EMF of first cell, which is equal to E1, and potential difference across these 2 points is proportional to the length of this portion, and it is equal to K times of L1. We can mark this equation as equation number first. Now remove the key from the first gap and insert the key in second gap and repeat the same process। उसी process को फिर से repeat करो। मान लेते हैं second cell के लिए बैलेंसिंग पॉइंट कहां मिल रहा है? J2, और उसकी वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? L2। इन सच केस वी गेट EMF of the second cell is equal to K times of L2। Mark this equation as equation number second। Now if we take the ratio of E1 by E2, we will get L1 by L2। और L1 और L2 को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि इस वायर के पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ फ्रॉम द टर्मिनल A कैन बी डिटरमाइंड। अगर हमें L1 और L2 पता है, we can easily calculate the ratio of EMF of two primary cells, and in this way potentiometer can be used to compare or to find EMF of cell। Now let us discuss the use of potentiometer to determine the internal resistance of the cell। Again, in order to draw the circuit, we have to mark potentiometer wire, और पोटेंशियोमीटर वायर को zigzag मैनर में हम 10 मीटर का शो करने के बजाय सिंपली एक स्ट्रेट वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू पास करंट थ्रू इट, क्या कनेक्ट करना है? एक बैटरी अलोंग विद ए की और एक रियोस्टेट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, और उस करंट को मेजर करने के लिए हम एक अमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जिस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है, उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे टू A, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। किससे कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम? एक गैल्वेनोमीटर से, एंड नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए जॉकी। इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर रहे हैं अलोंग विद ए की K1। तो अब ध्यान दें कि इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह की है कि हम की K को क्लोज करेंगे एंड कीपिंग की K को ओपन रखेंगे। अब जैसे ही हम जॉकी को टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, एंड वी हैव टू फाइंड ऑन दिस वायर ए पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। लेट दैट पॉइंट इज, मान लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है? J पॉइंट। मान लेते हैं वो पॉइंट है J पॉइंट, and length of this portion of the wire is L1। इस पोर्शन की लेंथ क्या है? L1। अगेन जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव ऑफ दिस टर्मिनल ऑफ द सेल एंड A पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि करंट इन दिस ब्रांच इज जीरो। तो करंट इस ब्रांच में जीरो है, इसका मतलब क्या है? इस वायर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है। इसी तरह से सेल के नेगेटिव और J पॉइंट, इस पूरी वायर में भी करंट कितनी है? जीरो। इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव ऑफ द सेल एंड J पॉइंट दे आर एट सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज इक्वल टू पॉइंट A, ओके, एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल
is equal to potential of point J. Clear? Means potential difference across two terminal of cell is equal to potential difference across A and J. अब इस केस में as no current is drawn from the cell, the potential difference across the two terminal is called EMF of the cell, and it is equal to potential difference across A and J, and which is equal to K times of L1. Mark this equation as equation number first. Now, if we close the key K, अगर हम key K को close कर दें और and repeat the same process, अगर उसी process को हम repeat करते हैं, in such case बैलेंसिंग पॉइंट हमें पहले जहां मिल रहा था वहां नहीं मिलेगा. मान लेते हैं वो बैलेंसिंग पॉइंट हमें कहां मिल रहा है, एट पॉइंट J डैश, एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज L2. बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, L2 आ रही है. अब इस केस में अगेन फिर से आप ध्यान दें कि अब ये जो सेल है, नाउ इट इज कनेक्टेड टू दिस सर्किट एंड करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. अब क्योंकि इस पूरी ब्रांच के अंदर A से लेकर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से लेकर J डैश तक कोई करंट नहीं है, करंट इन दिस ब्रांच इज जीरो. ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A. पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट J डैश. अब आप ध्यान देना, इस केस में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द सेल वो ईएमएफ नहीं होगा. वो ईएमएफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस मेन सर्किट की इस ब्रांच में करंट जीरो है, बट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल बाय दिस सर्किट. हेंस the potential difference across the two terminal is called terminal potential difference, which is represented by letter V, and that potential difference is equal to potential difference across this portion of the wire, which is equal to K times of L2. Mark this equation as equation number second. जहां हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, वहां रिलेशन आ रहा था इट इज इक्वल टू E by V minus 1 into R. ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. अगर ये वैल्यूज E और V की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करें, वी गेट K टाइम्स ऑफ L1, K टाइम्स ऑफ L2, K कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट L1 by L2 minus 1 into R. And by using this relation, we can find the internal resistance of the cell, because L1 और L2 हम measure कर सकते हैं with the help of meter scale fixed along with the wire, and R is the resistance from the resistance box. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, कैन वी यूज ए मीटर ब्रिज एज ए पोटेंशियोमीटर? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि मीटर ब्रिज को पोटेंशियोमीटर की तरह कैसे काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, इट इज अ सिंपल वायर, लॉन्ग वायर. और मीटर ब्रिज की अगर हम उस वायर को यूज कर लें, उसके दोनों एंड्स को यूज कर लें, इट कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियोमीटर. सेकेंड इंपॉर्टेंट, इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर प्रेफर करेंगे या पोटेंशियोमीटर प्रेफर करेंगे. तो वोल्टमीटर से आसान है प्रोसेस, बट वोल्टमीटर, व्हेन वी कनेक्ट ए वोल्टमीटर अक्रॉस ए सेल, जब हम किसी सेल के अक्रॉस एक अगर वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, दैट वोल्टमीटर shows reading only if it draws current. अगर सर्किट में करंट होगी तो ये वोल्टमीटर रीडिंग शो करेगा. It means voltmeter reads potential difference, but while measuring the potential difference across the two terminal, it draws current from the cell. Means actually it is measuring terminal potential difference. क्या measure कर रहा है ये? Terminal potential difference. Whereas when we use potentiometer to measure the EMF, it does not draw any current from the cell. Cell से कोई current pass नहीं होती उस केस में. That's why potentiometer is preferred over voltmeter for measuring EMF of the cell. अब एक और चीज आप ध्यान दें कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, कई बार हम बोल रहे हैं कि मीटर ब्रिज कैन आल्सो बी यूज्ड एज पोटेंशियोमीटर. तो लैब के अंदर हम 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर क्यों काम में लेते हैं? रीजन क्या है कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितनी कम होगी, उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही हाई होगी. एंड फॉर हाई सेंसिटिविटी long wire potentiometer is preferred over short wire potentiometer.
पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। ओके, मान लेते हैं कि हमने इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, 10 वोल्ट, और वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। इट मींस इट विल मेजर 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी इसका 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0.01 वोल्ट। अगर मान लेते हैं कि इसी पोटेंशियल को अगर हम सिर्फ 1 मीटर वायर के अक्रॉस कनेक्ट करें, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, 10 वोल्ट, और पोटेंशियोमीटर की लेंथ कितनी है, मींस डिवाइडेड बाय 100, एंड इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक तरह से यहां K की वैल्यू क्या है, 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यहां K की वैल्यू क्या आ रही है, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट केस के अंदर 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.01 वोल्ट, जबकि सेकंड केस में 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल कितना है, 0.1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इस केस में ये ज्यादा एक्यूरेटली उस ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, क्योंकि ये लीस्ट काउंट कम है। एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम पर सेंटीमीटर व्हिच कैन बी मेजर्ड। इस केस में मिनिमम है, तो हेंस वी प्रेफर ए डिवाइस हैविंग लोअर लीस्ट काउंट, मींस हायर सेंसिटिविटी के लिए वायर की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। हम उस पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे जिसकी K की वैल्यू कम हो, तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इन केस अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, और उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस कंप्लीट यूनिट के न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।